Let's start with the question number 6 on single entry system. Okay, incomplete records है, single entry है, proper trial balance, balance sheet, profit and loss account नहीं बना हुआ है और हमको figures इसमें से निकालना है so that हम net profit properly निकाल सकें. Let's start. Draw our statement of profit or loss account who maintains his books on single entry system. His statement of assets and liabilities on 31st March 1988 is as follows. हमको एसेट साइड में कुछ आइटम्स दिए हुए हैं, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, sundry debtors and cash. Now coming up to the liabilities side, sundry creditors, loan from money lender, other liabilities. My friend, capital कहाँ है यहाँ पर? So capital is most important. ये बैलेंसिंग फिगर होएगा. सबसे पहले हम टोटल लेते हैं आपके एसेट साइड्स का. This side comes up to 1,71,000 and यदि हम लाइबिलिटीज साइड का टोटल ले रहे हैं तो दिस इज ओनली 1,35,000. सो योर कैपिटल विल बी 1,71,000. बैलेंसिंग फिगर हो जाएगी कैपिटल माइनस 1,35,000, दैट इज 65,000 प्लस 56,600 plus 13,400, that comes to 135,000, 1,35,000, and so the capital is your balancing figure which comes up to 36,000. So one information we have drawn from this. Now it tallies. Now let's go to the other information given. His drawings during the year is 3,000. 5 items in our capital account, उसमें से एक हमारा drawing भी होता है तो हम use करेंगे इसको. Depreciation rates are as follows. Land and building 2%, furniture 5%, plant and machinery 10%. So you tell me कैपिटल अकाउंट में ये डेप्रिसिएशन रेट्स का कोई मतलब है क्या? ये हमको एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो हम नेट प्रॉफिट के बाद यूज करेंगे. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. डोंट मिक्स इट अप इन द कैपिटल अकाउंट बिकॉज कैपिटल अकाउंट हैज ओनली 5 items: opening capital, closing capital, drawing, additional capital and net profit. उसके बाद जो भी आता है वो हमारा एडिशनल इंफॉर्मेशन और एडिशनल एडजस्टमेंट्स के अंदर जाएगा. दैट इज व्हाई आई प्रिफर मेकिंग अ सेपरेट कैपिटल अकाउंट कि नेट प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट्स इसमें से मिल जाएगा और उसके बाद आगे के एडजस्टमेंट 2 स्टेप्स में हम इधर कर देंगे. स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड सो एंड सो. सो दिस इज, ये हमारा एक पोर्शन है जो हम मार्क करके रखते हैं जो कैपिटल अकाउंट में कुछ नहीं होगा उसका. Reduce sundry debtors by 2%. Now again nothing to do in capital, just mark and keep it कि once we get the net profit after that adjustment में ये आएगा. Stock worth ₹800 for used for private purpose during the year 1987-88. प्राइवेट पर्पस के लिए कोई स्टॉक यूज किया मीन्स अगेन ड्रॉइंग. कैपिटल अकाउंट में ड्रॉइंग का इफेक्ट देते हैं तो एक ड्रॉइंग इधर है हमारे पास और सेकेंड ड्रॉइंग इधर है, दोनों को कंसिडर करेंगे. He sold some of his household furniture for ₹1,000 and paid this into his business bank account. So what is this? Additional capital लेकर आया है, personal furniture बेचा है and brought the amount into business bank account. That means additional capital into the business. Effect will be given in your capital account. Okay. So this is again marked. His capital at the beginning of the year was 30,000. Opening capital is also given to us. So let's start with ours capital account. First thing is your opening capital. So by balance brought down, दैट इज ब्रैकेट में लिख सकते हो कि हमको पता है कि ये ओपनिंग कैपिटल है. ओपनिंग कैपिटल विच इज गिवन इज 30,000. सो मार्क इन कॉलम 30,000. ओके, ओपनिंग कैपिटल गिवन. साथ में तुरंत क्लोजिंग कैपिटल भी लिख दो जो हमने कैलकुलेट किया था. सो टू बैलेंस कैरीड डाउन
to balance carried down. Opening capital 30 हो गया. Closing capital as we calculated 1,71,000 minus 1,35,000 comes up to 36,000 is your closing capital. So 36,000 is your closing capital here. Opening capital लिख दिया, closing capital लिख दिया. बचा क्या? Drawing बचा है और उसके बाद एडिशनल कैपिटल बचा है और नेट प्रॉफिट हमारा बैलेंसिंग फिगर आएगा बिफोर एडजस्टमेंट्स. सो टू ड्रॉइंग्स ये होगा. ड्रॉइंग्स डेबिट साइड में आते हैं. ड्रॉइंग्स के लिए उन्होंने हमने यहाँ पर दो चीजें मार्क की है, फर्स्ट थिंग एंड सेकेंड थिंग. सो ड्रॉइंग्स का देखिए कैसे करेंगे. हिज ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर इज 3,000. सो ड्रॉइंग्स इन कैश बोल लीजिए, दैट इज योर 3,000 इन द इनर कॉलम. और एक और ड्रॉइंग के बारे में दिया है, स्टॉक वर्थ ₹800 फॉर यूज्ड फॉर प्राइवेट पर्पस ड्यूरिंग द ईयर. आप कैश से ले लीजिए, बैंक से ले लीजिए, चाहे स्टॉक ले लीजिए पर्सनल पर्पस का, दैट ऑल इज ड्रॉइंग ओनली. मनी और मनीज वर्थ विड्रॉन इज ड्रॉइंग. सो स्टॉक टेकन or goods taken for private purpose is drawing. Remember this. So you have done this point, you have done this point, and it is 800. So your total drawings come up to 3,800. Okay. Now after drawing, immediately your attention should be, अब additional capital कहाँ है, मैं additional capital को ढूंढूंगी. So by बैंक या कैश से मेरी एडिशनल कैपिटल आ जाएगी. एंड इट इज रिटन हियर, ही सोल्ड सम ऑफ हिज हाउस होल्ड फर्नीचर फॉर ₹1,000 एंड पेड इट इनटू बिजनेस बैंक अकाउंट. सो बाय कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड और एडिशनल कैपिटल आप यहाँ डाल सकते हैं इज 1,000. सो मेरे कैपिटल अकाउंट में ओपनिंग कैपिटल हो गया, क्लोजिंग कैपिटल हो गया, ड्रॉइंग हो गया and your additional capital हो गया. Now one thing is left, that is net profit जो balancing figure होने वाला है. So by net profit before adjustments. अब मेरे पास यहाँ adjustments है, ध्यान दीजिए adjustments है जो मुझे आगे करने हैं, लेकिन इनको मिक्स नहीं करना है कैपिटल अकाउंट के साथ. So net profit before adjustments will be your balancing figure. Just total करिए आपके डेबिट साइड का. 3,800 plus 36,000 is 39,800. 39,800. Same total on your credit side, 39,800. Subtract 30 plus 1, 31,000 from 39,800. Your net profit is 8,800, and from 8,800 now we'll start doing the adjustments. So making a separate capital account is always helpful, and it avoids doing mistakes in your exam. Maybe it will take 5 minutes extra, but then it is okay. So start with your closing capital. Or you can write capital as on 31,388. क्लोजिंग कैपिटल यहाँ से उठा लीजिए. अब क्वेश्चन देखने की जरूरत ही नहीं है. 36,000 is here. Then we have a small formula which we can't forget now after doing so many questions. Add, less. क्या add करेंगे, क्या less करेंगे. So what I am adding is, add का D उठा रही हूँ, add drawing during the year. यहाँ देखिए 3,000 plus 800 is 3,800. Add 3,800 here, and the total of 36,000 plus 3,800, 39,800 is here. Now less पूरा add उठा के यहाँ लिखो. add यहाँ से add को पूरा उठाओ, यहाँ लिखो. So that will help you remember. Less your additional capital और capital introduced during the year. कितना है additional capital और capital introduced during the year? 1,000 rupees. So
लेस करो आपका additional capital 1000 rupees has to be subtracted, and the last thing which has to be subtracted is your capital at the beginning of the year, or your opening capital or capital at the beginning of the year, that is on 1487. So capital at the beginning is given in the question also, and we need not see because we have made a capital account. It is 30,000 written here, so less 30,000. तो जो नेट प्रॉफिट हमको कैपिटल अकाउंट में मिला था बैलेंसिंग फिगर 8,800, वही हमको यहाँ पर मिल रहा है 8,800 इज योर नेट प्रॉफिट. बट नेट प्रॉफिट में क्या, अब तक हमको आगे एडजस्टमेंट्स नहीं आ रहे थे, अभी इस क्वेश्चन में यहाँ पर एडजस्टमेंट्स है. सो वील राइट हियर नेट प्रॉफिट before adjustments. Important, BEFORE, before adjustments. अब आप देखिए कि एडजस्टमेंट से पहले मुझे ये नेट प्रॉफिट मिला और अब मुझे एडजस्टमेंट्स करने हैं. सो व्हाट वर द एडजस्टमेंट्स? एक तो मुझे डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट उन्होंने दिया था. डेप्रिसिएशन में लगाऊंगी तो मेरा प्रॉफिट रिड्यूस होगा कि इंक्रीज होगा? Depreciation is a charge on asset. Profit will get reduced due to depreciation. So I will, from net profit, what you will do? You will reduce. So less depreciation. अब देखिए depreciation इन्होंने बोला है land and building पे 2% है. ओके, लैंड एंड बिल्डिंग इनर कॉलम में हम लिखते जाते हैं. लैंड एंड बिल्डिंग पे 2% है डेप्रिसिएशन. एंड देन फर्नीचर पे 5% है. सो लिखो एक बार, फर्नीचर पे 5% डेप्रिसिएशन है. एंड प्लांट एंड मशीनरी पे 10% डेप्रिसिएशन है. सो प्लांट एंड मशीनरी पे 10% डेप्रिसिएशन है. ऑफ द वैल्यूज आप देखो वैल्यूज क्या हमको दिए हुए हैं. लैंड एंड बिल्डिंग इज 20,000, फर्नीचर 3,000, प्लांट एंड मशीनरी 55,000. सो अल्टीमेटली हम यदि करेंगे 20,000 का 2% कम्स टू 400. सो ये आपका लैंड एंड बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन हो गया. फर्नीचर 3,000 का 5% दैट कम्स टू 150. एंड देन प्लांट एंड मशीनरी 55,000 का 10% कम्स टू 5,500. सो डेप्रिसिएशन का टोटल हमारा हो रहा है 6,050. 6,050 डेप्रिसिएशन का अमाउंट हमको यहाँ से नेट प्रॉफिट में से हटाना है. सो 8,800 माइनस 6,050 comes to 2,750. बट वी हैव वन मोर एडजस्टमेंट्स आफ्टर. ये डेप्रिसिएशन का हमने कर दिया है. बैड डेट्स का देखिए, रिड्यूस सन्ड्री डेटर्स बाय 2%. सो बैड डेट्स रिजर्व की रिड्यूस करना है हमको सन्ड्री डेटर्स को 2% से. सो ऑब्वियसली रिड्यूस कर रहे हैं, इनसे हमसे पैसा लेना था डेटर्स से, अब हमको उसका प्रोविजन बना रहे, रिजर्व बना रहे हैं और उसको 2% से हम रिड्यूस करते हैं, तो हमारा प्रॉफिट भी कम होगा. लेस बैड डेट्स रिजर्व on sundry debtors 2% रिजर्व बनाया है. चलिए देखते हैं कि डेटर्स का हमको अमाउंट कितना दिया गया था क्वेश्चन में. 75,500 इज योर डेटर्स अमाउंट. सो 2% ऑफ 75,500 that comes to 1,510. 1,510 को रिड्यूस करिए, बिकॉज इस हम जब भी डेटर्स का प्रोविजन बनाओ, आप रिजर्व बनाओ, बैड डेट्स और बढ़ाओ, सबसे हमारा प्रॉफिट कम होता है, डिक्रीज होता है. इसलिए हम प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट्स में उसको रिड्यूस करते हैं ताकि हम नेट प्रॉपर फिगर पे पहुंच सकें. सो 1510 हैज टू बी रिड्यूस्ड, एंड फ्रॉम 1510 what we get is 1240, and that is your net profit for the year. Your net profit for the year.
सो क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है कि कैपिटल अकाउंट की 5 चीज़ें जो भी हमने हैं, ओपनिंग, क्लोजिंग, ड्रॉइंग, एडिशनल कैपिटल और बैलेंसिंग फिगर, नेट प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट लेकर आओ। उसके बाद एडजस्टमेंट्स में देखो कि डेप्रिसिएशन है तो मेरा प्रॉफिट रिड्यूस करेगा, उसको रिड्यूस कर दो। यदि बैड डेट्स का मुझे कुछ प्रोविजन, रिजर्व या फिर एडिशनल बैड डेट्स कुछ भी है तो उसको लेस कर दो, और फिर हमारा नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर ये लेकर आओ। हम ये फर्दर और क्वेश्चंस करेंगे जिसमें काफ़ी सारे एडजस्टमेंट्स होंगे, एंड देन वंस यू प्रैक्टिस it is really easy. Just pay attention, don't mug up anything, just try to understand, and slowly we'll do more questions and you will have command on this topic.